everyone, welcome back to my channel. So in this video we will learn about React props. So in previous video already we have done about what is React props and how use it. So in this video we are learn how to pass array to props. So this is our product component where we pass props, which is title, and second props is price. In title there is a string and in price there is a number. So when we want to pass array to props, so how we can do that? Let's get started. Let's create array which is arr and gives gives three string value, which is anything, hi, second is quote, third is complete. So this is our array and we want to pass it as props. So first product component is we give some value like features, props names is features, and how to pass array to props. So features is props, and in features props we can pass our arr. So this is very simple, and this is our array pass to props, and now we can use it in product component. Let's get see how to use it. So this is our product component and there is one props is title, second is price, and third is features. And just simply create an p tag, and in p tag we just write features, which is props comes from parent component. And now let's run our app. Npm run dev. So here is this in app component there are three product component, and there are three product component in which we give some props. In first component we give title, price, and features, and second component we give two props, and third component we gives only one props. But in that product component we gives default value of price props, which is 20,000. So there are three product component which are, see here, this is first component where we pass laptop 25,000, and this is our array which we passed through the props. So this looks not good, so we can use it with another way. What we can do that what we can do with this array. So when we pass this array, just all the elements of that array making list like li using li tag. So let's get do that li, and this is our first element of array, and same with this second element li.
and this is same done with third element of that this array, li. So now we can see our UI. So all the elements of array is behave like a list, and we are passing through the props to this array and accessing in this product component, and just write the props name with in this props we see that features is an array, and array of element is li using li tag, which is list. One way to rendering our arrays in our child component, which is using map. So what we can do, that comment this, and let's create another array like hello world, how are you. So this is our simple array which we passed using this props, and you are using anytime map function of array when you need filter the all element of array and it returns new array. So features is an array, and we just do with this features array. तो मैप फंक्शन क्या करता है कि एरे के हर एक एलिमेंट को लेता है और फिल्टर करता है, मतलब अल्टर करता है, सॉरी, अल्टर करने का काम करता है, और एक नया रिटर्न सेम साइज का नया एरे रिटर्न करता है सेम साइज का। तो हम एरे के एक एक एलिमेंट को लेंगे ईएल को, और उसको हम सिंपली मैप फंक्शन की हेल्प से क्या करेंगे कि एक लिस्ट बना देंगे। एक लिस्ट को हम लोग क्या करेंगे, li टैग बनाएंगे, और जिसके अंदर हम ईएल को, अब हमारा फीचर्स एक क्या है, एक एरे है जिसमें हमने मैप फंक्शन लगाया है, और एरे का ही मेथड है मैप। मैप क्या करता है कि हर एक एरे के एलिमेंट को लेगा और उसको अल्टर करेगा। तो हर एक एलिमेंट को लेगा, यानी कि 5 एलिमेंट है तो 5 पर ये मैप फंक्शन मैप मेथड चलेगा। तो मैप हमारा पहले हेलो एलआई में प्रिंट कराए, मतलब वही प्रिंट कराएगा, एक तरीके से डिस्प्ले कराएगा, फिर हमारा वर्ल्ड डिस्प्ले कराएगा, फिर हमारा हाउ, फिर देन आर, देन यू। तो हमारा 5 एलआई टैग बन के आ रहा होगा। यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा, कुछ मिस्टेक हो गया है, देखते हैं हम। ये हमारा इलेक्ट ARR हो गया, और ये हमारा प्रोडक्ट डॉट JSX में हमने फीचर्स को लिया, और इसको H6 बना लेते हैं। कुछ उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप P भी लिख सकते हो। H6 फीचर्स डॉट मैप हमने किया, एक मिनट चेक करते हैं इसको क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पर हमने क्या किया कि फीचर्स तो इसके लिए पास किया नहीं है, और इसके लिए एरर थ्रो कर सकता है क्योंकि हमने इसमें फीचर्स एलिमेंट फीचर्स प्रॉप्स पास नहीं किया है, और वहाँ पर हम मैप फंक्शन उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इशू आ सकता है। बाकी अब हम करेंगे यहाँ पर मैप फंक्शन जब भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम की यूज़ के ज़रूर करेंगे, की का यूज़ ज़रूर करेंगे।
इंडेक्स एंड की हमारा इंडेक्स हो जाएगा। अब चेक करते हैं। तो ये अब हमारा सही हो गया है। प्रॉब्लम क्या थी कि हमने जब भी मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं तो अगर यहीं से हम की यहाँ पर इंडेक्स को हटा दें और यहाँ पर हम की को हटा दें तो क्या ये चलेगा? हाँ, ये चलेगा तब भी। दिक्कत क्या आ रही थी कि जब हम दूसरा कंपोनेंट रेंडर करा रहे थे, लाइक अगर हम इसको मतलब वहां पर हम की जरूर लिखते हैं, जब भी हम मैप फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें पास जरूर करते हैं, दो वैल्यू पास होती है। अगर हम इसको अनकमेंट करेंगे तो देखते हैं क्या इसकी वजह से इशू आ रहा था। हाँ, इसकी वजह से इशू आ रहा था। अब इसकी वजह से क्यों प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर इसको हम मतलब डिबग करके चेक करेंगे तो इसकी वजह इस प्रॉब्लम जो है कि हमने इसमें टाइटल पास किया है, इसमें प्राइस पास किया है और इसमें सिर्फ टाइटल पास किया है और फीचर्स हमारा एक एरे है जिसको हम प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स कंपोनेंट में एक्सेस कर रहे हैं और उसमें मैप फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो जब हमारा सेकंड कंपोनेंट रेंडर होगा तो इसमें फीचर्स है ही नहीं, तो इसके लिए वो एरर थ्रो कर देगा। एक बार हम एरर चेक कर लेते हैं क्या एरर आ रहा है। कंट्रोल जेट, इसमें कुछ तो एरर आया नहीं। इसको कमेंट करते हैं। कोई एरर आ नहीं रहा बेसिकली। अच्छा, ये भी हम कर सकते हैं कि अगर जैसे हमने सेकंड जो कंपोनेंट है हो सकता है कि मतलब ये अभी यहाँ कहाँ फीचर्स भेज रहा है सेकंड कंपोनेंट और थर्ड कंपोनेंट प्रोडक्ट का, जब हम सेकंड टाइम और थर्ड टाइम प्रोडक्ट कंपोनेंट को रेंडर करवा रहे हैं अपने ऐप कंपोनेंट में, तो इसने फीचर्स को तो मतलब फीचर्स प्रॉप्स को तो पास ही नहीं किया है। तो जब भी फीचर्स प्रॉप्स को ये पास ना करे तो हम फीचर्स को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे जो कि होगा एम्प्टी एरे। तो जब ये एम्प्टी एरे होगा तो क्या अब हमारा सेकंड कंपोनेंट रन करेगा? हाँ, रन करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि भाई अभी एम्प्टी एरे है तो उसमें क्या ही मैप फंक्शन परफॉर्म करे हम, कोई एलिमेंट ही नहीं है। बट डिफॉल्ट वैल्यू तो आई है ना, मतलब कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो डिफॉल्ट वैल्यू को ले लिए कि हाँ फीचर्स कोई एरे है, तो इस वजह से अब हमारा कोई एरर नहीं आएगा। तो ये रहा कि हम किस तरीके से हम एरे को पास कर सकते हैं अपने JSX टैग में। ठीक है, और रिएक्ट प्रॉप्स के बारे में तो अच्छे से पढ़ ही लिए हैं कि रिएक्ट प्रॉप्स कुछ नहीं है, एक इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग पास करते हैं JSX टैग में। और जो चाइल्ड कंपोनेंट होता है वो एक्सेस करता है यूजिंग प्रॉप्स ऑब्जेक्ट। प्रॉप्स ऑब्जेक्ट रहता है और इस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में सारे के सारे लाइक हमारा ये टाइटल हो गया, फीचर्स हो गया, इस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉप्स डॉट टाइटल, प्रॉप्स डॉट फीचर्स, प्रॉप्स डॉट प्राइस। या दूसरा तरीका है कि आप जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें प्रॉप्स ऑब्जेक्ट ना लिखकर डायरेक्टली ये पास कर दे ऑब्जेक्ट ही, जिसमें सारे प्रॉप्स आ रहे हैं जो प्रॉप्स के नेम है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम कंडीशनल बेस पर, कुछ कंडीशन के बेस पर एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। कंडीशन के बेस पर जैसे हम लोग पढ़े थे टर्नरी ऑपरेटर, हमने पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसमें भी था कि अगर कुछ कंडीशन है तो अगर वो सही है तो हम ये काम परफॉर्म कर दे, एक लाइन में कोड लिख देते थे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम ये काम परफॉर्म कर देंगे, अगर ये कंडीशन मतलब ये चीज़ें फॉल्स होगी कंडीशन तो हम नेक्स्ट जो काम है वो परफॉर्म करेंगे। तो वैसे ही है कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन हम अपने एलिमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। रिएक्ट में किसी यूआई एलिमेंट को रेंडर करना है तो हम कैसे उसको रेंडर करना चाहते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके।